بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ فرحاد صاحب کے متعلق ہماری معلومات محدود ہیں، مگر اتنا سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے نہ کسی کی دولت پر قبضہ جمایا، نہ کسی عورت کی عزت پر جبراً ہاتھ ڈالا۔ پھر وہ اس جوان کی شریک حیات پر جبر کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اس کی عزت اور جان کے دشمن ہو گئے ہیں؟ کیا تمہارے دماغوں میں بولنے والا میری اس بات کا جواب دے گا؟ سپر ماسٹر نے زخمی پہلوانوں کو سمجھایا، میں دوست عورتوں کی عزت کرتا ہوں اور دشمن عورتوں کو معاف نہیں کرتا۔ میرے فرحاد ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ میں سوچ کے ذریعے بول رہا ہوں اور اس فراڈ نوجوان کا پول کھول رہا ہوں۔ زخمی پہلوانوں نے سپر ماسٹر کا جواب سنایا۔ پارس کے حمایتی نے کہا، جو نوجوان اتنا غیرت مند ہو کہ اپنی شریک حیات کے لیے جان کی بازی لگا کر تم سے مقابلہ کرے، وہ خواہ بے غیرت بن کر فرحاد صاحب کو اپنا باپ نہیں کہے گا۔ سپر ماسٹر نے کہا، تمہارا یہ ساتھی فضول بحث کر رہا ہے، تم تینوں مل کر اس کی پٹائی کرو اور اسے کسی طرح زخمی کرو، پھر میں اس کے دماغ میں پہنچ کر اسے بھی دوست بنا لوں گا۔ ایک پہلوان نے کہا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہم تینوں اس جوان سے مقابلہ کر کے آدھے ہو چکے ہیں، اپنے تازہ دم ساتھی سے مقابلہ کر کے زمین سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ دوسرے پہلوان نے پوچھا، آخر تم ہمیں آپس میں کیوں لڑوانا چاہتے ہو؟ میں تمہیں اس جوان کے فریب سے بچانا چاہتا ہوں اور تمہارے معاوضے کی رقم بڑھا کر $20,000 کرنا چاہتا ہوں۔ چلو تم تینوں کو $10,000 دوں گا۔ تینوں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ ایک نے پوچھا، کیا تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ ہاں کر سکتا ہوں۔ تم کسی طرح اچانک ہی حملہ کر کے اس جوان کو زخمی کر دو، پھر میں اس کے دماغ میں پہنچ کر اسے تمہارے مقابلے میں کمزور بنا دوں گا۔ یہ تو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے والی بات ہے۔ ہم اپنے تمام داؤ پیچ آزما چکے ہیں، وہ کسی طرح ہاتھ نہیں آتا، بجلی کی طرح ادھر سے ادھر لپکتا ہے۔ جب یہ ہاتھ نہیں آئے گا تو ہم کس طرح اسے زخمی کریں گے؟ دوسرے نے کہا، اے بھائی ٹیلی پیتھی جاننے والے، تم ہماری اوقات سے زیادہ ہمیں دے کر ہماری طاقت سے کام لینا چاہتے ہو، لیکن اگر ہم اس چھوکرے کو نقصان پہنچا سکتے تو ٹیلی پیتھی کی مدد کیوں مانگتے؟ اچھی بات ہے، مدد پہنچ رہی ہے۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہو فوراً آگے بڑھ کر کھول دینا، میرے مسلح آدمی آ رہے ہیں، وہ اندر آتے ہی اس نوجوان کو گولی مار دیں گے۔ یہ کہہ کر سپر ماسٹر نے اپنے اس ماتحت کے دماغ پر دستک دی جو پارس اور جوجو کو ہیلی کاپٹر میں وہاں لایا تھا۔ پہلے تو اس ماتحت نے سانس روک لی، پھر پوچھا، کون ہے؟ تمہارا باپ سپر ماسٹر۔ وہ فوراً اٹھ کر اٹینشن ہوتے ہوئے بولا، یس سر۔ وہ غصے سے بولا، یہودی کے بچے، تم نے میرے شکار کو کہاں پہنچا دیا ہے؟ وہاں پارس بازی پلٹ رہا ہے، اس نے تینوں پہلوانوں کو زخمی کر دیا ہے۔ تم نے کیسے چوہوں کا انتخاب کیا ہے؟ کیا تمہیں یہی اڈا ملا تھا؟ سر آپ جانتے ہیں ہیلی کاپٹر میں پیدا ہونے والی خرابی نے ہمیں اس جزیرے میں پہنچا دیا۔ میری فوری معلومات کے مطابق یہی لوگ یہاں پر خطرناک بدماش سمجھے جاتے ہیں، اتنے خطرناک کہ پولیس کبھی ان کے اڈے پر چھاپا نہیں مارتی۔ میں نے مجبوری اور عجلت میں ان کی خدمات حاصل کی ہیں۔ بہرحال میں بگڑے ہوئے کام کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ مجھے ایک موقع اور دیں۔ مجھے 3 پہلوانوں کے دماغ میں جگہ مل گئی ہے، چوتھا انہیں روک لیتا ہے اور وہ پارس کا حمایتی ہے۔ تم مسلح اعلی کاروں کے ساتھ اس دروازے پر دستک دو، ایک پہلوان دروازہ کھولے گا، تم اندر پہنچتے ہی پارس کو گولی مار دینا۔ جناب پہلے تو اسے گولی مارنے کی بات نہیں ہوئی تھی، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اسے زندہ سلامت ہمارے حوالے کریں گے اور ہم اسرائیل میں اسے قیدی بنا کر رکھیں گے۔ بے شک میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن تمہاری حماقتوں نے کام بگاڑ دیا ہے۔ اگر پارس نے اس حمایتی پہلوان کے ذریعے تمہیں وہاں سے مار بھگایا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ اس کے زندہ رہنے سے یہ راز فاش ہو جائے گا کہ اس کے اور جوجو کے اغوا میں اسرائیلیوں کا بھی ہاتھ تھا۔ فرحاد کو معلوم ہوگا تو اس بار وہ تم یہودیوں سے زبردست انتقام لے گا۔ اس نے پریشان ہو کر کہا، نہیں جناب، یہ راز فاش نہیں ہونا چاہیے، میں خود ریوالور لے کر اپنے آدمیوں کے ساتھ آ رہا ہوں، دروازہ کھولتے ہی اسے گولی مار دوں گا۔ سپر ماسٹر پھر اس 4 دیواری میں آ گیا۔ ایک زخمی کے ذریعے پارس کے حمایتی پہلوان سے کہا، تم جذباتی انداز میں اس نوجوان سے متاثر ہو گئے ہو، جب تمہیں یقین ہوگا کہ یہ فراڈ ہے اور میں فرحاد علی تیمور ہوں تو تم اپنی سلامتی کے لیے مجھ سے معافیاں مانگو گے، لیکن جو میرے مشکل وقت میں کام نہیں آتا اسے میں کبھی معاف نہیں کرتا۔ پارس نے کہا، سپر ماسٹر تم میرے ایک حمایتی کو میرے خلاف بھڑکا کر یہ دروازہ کھلوانا چاہتے ہو؟ تمہاری چال آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے۔
اب تمہارے سامنے یہی ایک دروازہ رہ گیا ہے جہاں سے تمہارے مسلح افراد آ کر مجھے اور میرے حمایتی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کی بات پوری ہوتے ہی دروازے پر دستک سنائی دی۔ ایک اعلی کار پہلوان تیزی سے آگے بڑھا۔ پارس نے اچانک چھلانگ لگائی، پھر اس کے سامنے دیوار بن کر بولا، سپر ماسٹر، تمہارے یہ تینوں اعلی کار کبھی دروازے تک نہیں پہنچ سکیں گے، یہ تینوں پٹے ہوئے مہرے ہیں۔ زخمی پہلوان نے دروازے کی طرف منہ اٹھا کر چیختے ہوئے کہا، فائر کرو، دروازے کا لاک توڑ دو۔ پارس فوراً ہی اچھل کر وہاں سے ہٹ گیا۔ ایک دیوار کی آڑ میں پہنچ کر اپنے حمایتی سے بولا، فوراً ادھر آ جاؤ۔ وہ دوڑتا ہوا دیوار کی طرف آیا۔ اسی لمحے کئی رائفلوں سے گولیاں چلنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ کئی گولیاں لکڑی کے دروازے کو چھید کر اندر آ رہی تھیں۔ ایک گولی زخمی پہلوان کو لگی، وہ چیخ مار کر اچھلا، پھر زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ پارس نے کہا، پہلوانوں، تم جسمانی قوت بڑھانے میں عمر گزار دیتے ہو، ذرا دماغی قوت کو بھی بڑھایا کرو۔ دیکھو، وہ شیطان ادھر تمہارا دوست بن رہا تھا اور ادھر اپنے آدمیوں سے اندھا دھند فائرنگ کروا رہا ہے۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس فائرنگ سے تمہاری جانیں بھی جائیں گی۔ وہ پہلوان زمین پر تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ پارس اپنی جگہ سے چھلانگ لگا کر دوسرے پہلوان کے پاس پہنچا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، بھائی، اب حملہ نہ کرنا، ہمیں عقل آ گئی ہے، ہم دوست ہیں۔ پارس اس کے پیچھے آ کر اسے ڈھال بناتے ہوئے بولا، دوست ہو تو آنے والوں کو روکو، جو بویا ہے اسے کاٹو۔ اسی وقت فائرنگ سے لاک ٹوٹ گیا۔ دروازے کے پٹ پر باہر سے ٹھوکر ماری گئی، ادھر وہ کھلا۔ ادھر حمایتی پہلوان نے وہ کرسی اٹھائی جس پر پارس کو بٹھا کر باندھا گیا تھا۔ اس نے آنے والے پر وہ کرسی دے ماری، جس کے نتیجے میں وہ آتے ہی فائرنگ نہ کر سکا۔ کرسی کی زد میں آ کر وہ پیچھے چلے گئے۔ حمایتی پہلوان نے بڑی بے باکی سے ان پر چھلانگ لگائی۔ پارس نے دوسرے پہلوان کو پیچھے سے ایک لات مار کر کہا، جاؤ اپنے ساتھی کی مدد کرو۔ وہ لات کھا کر لڑکھڑاتا ہوا نہ چاہنے کے باوجود آنے والوں پر خود بخود جا گرا۔ حمایتی پہلوان انہیں فائرنگ سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اپنی سلامتی چاہتے ہو تو اب گولی نہ چلانا، یہ میرا اڈا ہے، یہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں جائے گا۔ ایسی صورت میں جب دو پہلوان ان سے الجھے ہوئے تھے، وہ صحیح ٹارگٹ پر فائر نہیں کر سکتے تھے اور پہلوانوں کو گولی مار کر اڈے کے مسلح افراد سے دشمنی مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ وہ یہودی ماتحت پارس کا نشانہ لینے کا موقع دیکھ رہا تھا۔ پارس نے ان کی جانب چھلانگ لگائی۔ اس نے گولی چلا دی، لیکن مد مقابل یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ وہ چھلانگ لگانے کے دوران کس طرح سمت بدل دیتا ہے۔ فائر خالی گیا۔ اس نے سر گھما کر پارس کو ڈھونڈا۔ اسی وقت ہاتھ پر ٹھوکر پڑی، ریوالور چھوٹ کر فضا میں اچھلا۔ پارس نے اسے کیچ کر لیا۔ دوسرے نے اس پر گولی چلائی، مگر اسے تو یہ تربیت دی گئی تھی کہ ہتھیاروں کے سامنے کبھی ایک جگہ نہ ٹھہرو، پارے کی طرح جگہ بدلتے رہو۔ اس نے جگہ بدل کر فائر کرنے والے کو گولی مار دی، پھر وہاں سے پلک جھپکتے ہی دوسری جگہ آیا، دوسرے رائفل بردار کو ٹارگٹ بنایا۔ ان پہلوانوں کے مسلح ماتحت اب تک یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے پہلوانوں کو پارس کے خلاف سودا کرتے دیکھا تھا اور مسلح یہودیوں کو مہمان سمجھا ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بازی یوں پلٹ سکتی ہے، سودے کے خلاف یہودی مہمانوں سے جھگڑا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اتنی دیر میں وہ سچویشن کو سمجھ گئے۔ اب 3 مسلح یہودی رہ گئے تھے۔ انہیں نشانے پر رکھتے ہوئے حکم دیا، ہتھیار پھینک دو۔ وہ حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ پارس نے اپنے حمایتی سے کہا، اپنے آدمیوں کو حکم دو، اب کوئی منہ سے آواز نہ نکالے، وہ شیطان کسی کے دماغ میں پہنچ کر تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ 2 زخمی پہلوان اس کی خیال خوانی کے سامنے مجبور ہیں، ان سے بھی ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، انہیں فی الحال کسی کمرے میں بند کر دو۔ تم درست کہتے ہو، اس شیطان نے میرے ساتھیوں کی دماغی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم دونوں برا نہ منانا، اس شیطان سے دوستی کا انجام اپنے ایک ساتھی کی موت کی صورت میں خود دیکھ چکے ہو، میں تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں قید کر رہا ہوں۔ ایک زخمی نے کہا، ہمارے دماغ میں آنے والا شیطان نہیں، فرہاد ہے۔ تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ اگر فرہاد اس کا باپ ہے تو اس کے دماغ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ حمایتی نے پارس کو دیکھ کر کہا، یہ خیال مجھے بھی آیا تھا، مگر اس ہنگامے میں تم سے پوچھنا بھول گیا۔ فرہاد صاحب تمہارے والد ہیں، انہیں خیال خوانی کے ذریعے تمہاری مدد کرنا چاہیے، مگر وہ ہم میں سے کسی کے دماغ میں نہیں آ رہے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، میرے پاپا دوسرے معاملات میں مصروف ہیں،
चूंकि मैं अपने मामलात से खुद निमटना जानता हूँ, इसीलिए वो कभी कभी मेरे दिमाग में आते हैं। तुम ज़रा सब्र करो, वो फुर्सत पाते ही हमारे पास आएंगे। सुपर मास्टर ने कहकहा लगाते हुए कहा, यह छोकरा तुम्हें खूब उल्लू बना रहा है। सोचने की बात है, क्या बाप को अपने मामलात से इतनी दिलचस्पी है कि औलाद खतरात में घिर जाए तब भी वो उसकी परवाह नहीं करता। मैं फरहाद अली तैमूर हूँ। मेरा बेटा पारस मेरे पास मौजूद है। ये नौजवान बहुत ही खतरनाक है। मैं फिर समझाता हूँ, मेरे आदमियों को छोड़ दो और इस नौजवान को हमारे हवाले कर दो। दुनिया फरहाद से दोस्ती करना चाहती है, तुम दुश्मनी की हमाकत ना करो। हमायती ने परेशान होकर कहा, मेरी समझ में नहीं आता किसे फरहाद कहूँ और किसे शैतान। ये बात दिल को लगती है कि तुम इस लड़की के साथ ना जाने कब से इनकी कैद में हो। हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ लाए गए हो, फिर 4 घंटे से हमारे अड्डे में हो। क्या अब तक तुम्हारे बाप को तुम्हारी खैरियत मालूम करने की फुर्सत नहीं मिली? पारस ने कहा, बाज़ हालात में ऐसा होता है। मेरे पापा दिन रात किसी एक ही मामले में मसरूफ़ रहते हैं। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। उसने इनकार में हाथ हिलाते हुए कहा, मैं किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। चूँकि मैं तुम्हारी दलेरी और जवामर्दी से मुतासिर हूँ, इसलिए तुम्हें 2 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। इस अरसे में फरहाद साहब को मेरे दिमाग में आना चाहिए। सुपर मास्टर ने आला कार के जरिए कहा, मैं फरहाद हूँ, अपने दिमाग का दरवाज़ा खोलो, मैं आ रहा हूँ। उसने फिर इनकार में हाथ हिलाकर कहा, नहीं, मैं तुम्हारी बातें सुन चुका हूँ। तुम्हारे अलावा कोई दूसरा मेरे दिमाग में आकर इस नौजवान की हिमायत करेगा तो वही फरहाद होगा। अगर 2 घंटे के अंदर किसी ने मुझसे ख्याल ख्वानी के जरिए राबिता कायम ना किया तो ये साबित हो जाएगा कि फरहाद और इसके साथियों के सिवा कोई टेलीपैथी नहीं जानता, और वो टेलीपैथी जानने वाले फरहाद तुम ही हो। सुपर मास्टर उसकी ये बातें सुनकर परेशान हो गया था। 2 घंटे बहुत होते हैं। उसे अंदेशा था कि मैं इतनी देर में ज़रूर अपने बेटे तक पहुंच जाऊंगा और फिर उसकी तमाम चालें नाकाम हो जाएंगी। उसका अंदेशा गलत नहीं था। मैंने पारस के दिमाग पर दस्तक दी। उसने सांस रोक ली, फिर सांस लेते हुए पूछा, कौन? मैंने कोड वर्ड्स में कहा, योर पापा टू किस योर माइंड। ओह पापा, खुदा का शुक्र है आप आ गए। यहाँ सुपर मास्टर खुद को फरहाद बनाकर मेरी कोशिशें नाकाम बना रहा है। मैं आपको अपने हमायती की आवाज़ सुना रहा हूँ। आप उसके दिमाग में पहुंचकर यकीन दिलाएं कि मैं आपका बेटा हूँ और इतनी देर से फरहाद बनने वाला सुपर मास्टर है। उसकी आवाज़ सुनाओ। पारस ने अपने हमायती से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे माइटी पाशा कहते हैं। मैं उसकी आवाज़ सुनते ही उसके दिमाग में आ गया। वो सांस रोकना चाहता था। मैंने कहा, मैं फरहाद अली तैमूर हूँ, सांस ना रोकना। उसने पूछा, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि ये नौजवान तुम्हारा बेटा है? बेशक ये मेरा बेटा पारस है, इतनी देर से टेलीपैथी के जरिए धोखा देने वाला सुपर मास्टर है। उस कमबख्त ने ट्रांसफॉर्मर मशीन के जरिए ये इल्म हासिल कर लिया है। मैं उसे बेनकाब करने की कोशिश करता रहता हूँ, फिर भी यह शैतान कहीं ना कहीं कामयाब हो जाता है। इस तरह ये मेरे बेटे और बहू को अगवा करने में कामयाब हो गया है। खुदा का शुक्र है, मैं देर से पहुंचा फिर भी दुरुस्त पहुंचा। तुम मेरे साथ ताउन करो। जनाब फरहाद साहब, आप ताउन की बात करते हैं? मेरी तो जान भी हाजिर है, हुक्म दीजिए। तुम उस शख्स से बात करो जो मेरे बेटे और बहू को यहाँ लाया है। मैं तुम्हारे जरिए उसके दिमाग में पहुंचकर ये मालूम करना चाहता हूँ आखिर ये उन्हें अगवा करके कहाँ पहुँचाना चाहते थे। सुपर मास्टर के यहूदी मातहत को 2 आदमियों ने पकड़कर एक तरफ बिठा दिया था, लेकिन वो ऐसे तड़प रहा था जैसे गिरफ्त से निकलना चाहता हो। माइटी पाशा ने आगे बढ़कर गरजते हुए हुक्म दिया, आराम से बैठो वरना बुरी तरह पेश आऊंगा। वो अचानक सर झुकाकर आराम से बैठ गया। माइटी पाशा ने पूछा, तुम इन्हें अगवा करके कहाँ लेकर जा रहे थे? उसने जवाब नहीं दिया। पाशा ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर सर को एक झटके से उठाया। उसके दीदे फैल चुके थे। वो बिल्कुल साकित था। मैंने कहा, यह मर चुका है। माइटी पाशा ने ताज्जुब से पूछा, क्या वाकई? मगर कैसे? अभी तो ये गिरफ्त से निकलने की जिद्दोजहद कर रहा था। ये तुम्हारी आदमियों की गिरफ्त से निकलने के लिए नहीं, बल्कि सांस लेने की कोशिश में तड़प रहा था। सुपर मास्टर इसके दिमाग पर कब्जा जमा कर इसे सांस लेने से रोकता रहा। आखिर ये दम घुट जाने से मर गया। ओह गॉड, क्या दिमाग में आने वाले यूं सांस रोककर मार देते हैं? मैंने कहा, इसके दूसरे साथियों से मालूम करो, ये हेलीकॉप्टर में कहाँ जाने वाले थे? वो दूसरे कैदियों से पूछने लगा। सब ने एक ही जवाब दिया, हम नहीं जानते, हमसे काम लिया जा रहा था, मंजिल नहीं बताई गई थी। मैंने एक एक के दिमाग में पहुंचकर हकीकत मालूम की। वो सच कह रहे थे। उनके दिमागों से सिर्फ एक बात मालूम हुई
کہ सुपर मास्टर ने जिसे दम घोंट कर मारा था वो यहूदी था। मैंने माइटी पाशा से कहा, ये लोग दुरुस्त कह रहे हैं, उन्हें अपनी मंजिल का पता नहीं बताया गया था, फिलहाल उन्हें कैदी बनाकर रखो। उसने अपने आदमियों को कहा, इन्हें एक कमरे में ले जाकर बंद कर दो। उसके हुक्म की तामील होने लगी। मैंने पारस से पूछा, क्या हेलीकॉप्टर में इतने ही अफराद थे? जी हाँ, उसने जवाब दिया। फिर चौंक कर बोला, हेलीकॉप्टर का पायलट यहाँ नहीं है, मालूम करो वो कहाँ है। इतना तो मालूम हो चुका है कि उनमें से एक यहूदी था। तुम दोनों के अगवा में इसराइलियों का हाथ भी हो सकता है, मैं तस्दीक चाहता हूँ। पारस ने माइटी पाशा से पूछा, हेलीकॉप्टर का पायलट कहाँ है? माइटी पाशा ने यही सवाल अपने ख़ास मातहत से किया। उसने जवाब दिया, वो जजीरे में कहीं तफरीह के लिए गया है, किसी बार या क्लब में होगा। वो ख़ास मातहत एक बड़ा सा पैकेट लाया था। उसे पारस को देते हुए बोला, इसमें जनाना लिबास है, अपनी शरीके हयात के लिए ले जाइए। पारस ने वो पैकेट लेकर कहा, किसी अच्छे डॉक्टर को बुलवाओ, मेरी वाइफ को तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। वो डॉक्टर को बुलाने चला गया। मैंने कहा, बेटे तुम जोजो के पास रहो, मैं उस पायलट के पास पहुंचने की कोशिश करता हूं। इस बात का ख्याल रखना कि जोजो होश में आएगी तो उसका दिमाग कदरे कमज़ोर होगा। सुपर मास्टर उसे आला कार बना सकता है। तुम्हें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे पास आता रहूँगा। मैंने माइटी पाशा से कहा, तुम यहाँ से निकलो और जजीरे के बार और तफरीह गाहों में चलो। उस पायलट तक पहुँचना बेहद ज़रूरी है। मैं तुम्हारे दिमाग में रहूँगा। वो अड्डे से बाहर जाने लगा। मैंने कहा, ज़रा ठहरो। वो रुक गया। मैं उसके दिमाग से निकल आया। फिर चंद सेकंड के बाद उसके अंदर पहुंचा तो उसने मेरी सोच की लहर को महसूस नहीं किया। मैंने कहा, माइटी पाशा, तुम टेलीपैथी वालों की चालों को रफ्ता रफ्ता समझोगे। मैं तुम्हें समझाता जाऊंगा। जब एक ख्याल ख्वानी करने वाला तुम्हारे दिमाग में मौजूद हो तो तुम दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले को महसूस नहीं कर सकोगे। उसने पूछा, क्यों महसूस नहीं कर सकूंगा? इसलिए कि तुम्हारे दिमाग का दरवाज़ा पहले ख्याल ख्वानी करने वाले के लिए खुला रहेगा, दूसरा चुपचाप आकर तुम्हारा ख्याल पढ़ता रहेगा। अभी तुम्हारे दिमाग में मेरे अलावा सुपर मास्टर भी मौजूद है। उसने चौंक कर पूछा, क्या वाकई? हाँ, अभी मैं चंद सेकंड के लिए तुम्हारे दिमाग से बाहर गया था तो तुमने मुझे ना जाते हुए महसूस किया ना आते हुए, क्योंकि दूसरा यहाँ मौजूद था। उसने पूछा, फरहाद साहब, शैतान को भगाने के लिए लाहौल पढ़ा जाता है, सुपर मास्टर के लिए क्या पढ़ूं? ठहरो, मैं अभी बताता हूँ। मैं उसके दिमाग से निकला, फिर आ गया। इस बार वो सांस रोकना चाहता था। मैंने कहा, मैं फरहाद हूँ, ज़रा सी देर के लिए बाहर गया था और फिर वापस आ गया हूँ। ये तस्दीक हो गई है कि वो शैतान लाहौल पढ़ने से पहले ही भाग गया है। ये तो अजीब चक्कर है। आइंदा मैं इसे दिमाग में किस तरह महसूस कर सकता हूँ? मेरी मौजूदगी में कभी महसूस नहीं कर सकोगे। फ़िलहाल बचाव की एक तदबीर है, अपने साथ एक मातहत रखो, मुझे उसकी आवाज़ सुनाओ। मैं उसके दिमाग में रहकर जजीरे में तुम्हारे साथ घूमता रहूँगा। कोई ज़रूरत हुई तो उस मातहत की ज़ुबान से तुम्हें मुखातिब करूँगा। उसने फ़ौरन एक मातहत को तलब किया, उसकी आवाज़ सुनवाई, फिर मेरी हिदायत के मुताबिक उसे हुक्म दिया कि वो हमेशा गूंगा बना रहेगा। इसकी ज़ुबान से सिर्फ फरहाद साहब बोला करेंगे। मैंने इस एहतियाती तदबीर से सुपर मास्टर को माइटी पाशा के दिमाग में जाने से रोक दिया। उसे समझा दिया कि फ़िलहाल वो मुझे भी दिमाग में ना आने दे। इसके बाद अगर कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला उसके अंदर आएगा तो वो दुश्मन ही होगा। माइटी पाशा अपने मातहत के साथ एक कार में आकर बैठ गया। उसे स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए बोला, एक सवाल करना चाहता हूँ, आप मुनासिब समझें तो जवाब दें। क्या सुपर मास्टर उस पायलट के दिमाग में नहीं पहुंचा होगा? कार साहिली इलाके की तरफ जा रही थी। मैंने कहा, अभी गाड़ी में तुम हो, कोई तीसरा सुनने वाला नहीं है, इसलिए तुम्हारे मातहत की ज़ुबान से जवाब दे रहा हूँ। सुपर मास्टर शायद पायलट के दिमाग में पहुंच चुका होगा और शायद ना भी पहुंचा हो। हम ख्याल ख्वानी करने वाले बैक वक्त दर्जनों अफराद के लबो लहजे को याद नहीं रख सकते। अगर एक टीम हो तो टीम के तमाम अफराद तक पहुंचना ज़रूरी नहीं होता। उनके सरबराह और दो चार ख़ास लोगों के दिमागों में जगह बनाना काफ़ी होता है। हो सकता है सुपर मास्टर ने उस यहूदी मातहत के दिमाग में जगह बनाई हो और बाकी सब को नज़रअंदाज कर दिया हो। माइटी पाशा ने कहा, हाँ, ये बात समझ में आती है। अगर वो शैतान सबके दिमागों में पहुंचता तो उसके जिन आदमियों को हमने कैदी बनाकर रखा है उन्हें भी टेलीपैथी के जरिए कत्ल कर देता। इस मामले में वो नाकाम रहा। आपको उनके ज़रिए ये तो मालूम हो गया कि उसके लिए काम करने वाला और उसके हाथों मरने वाला यहूदी था। खुदा करे वो पायलट भी उसकी टेलीपैथी से महफूज हो।
मैंने कहा, तुम्हारे नाम से मालूम होता है कि तुम आधे मुसलमान और आधे ईसाई हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। फिर यह माइटी पाशा का क्या मतलब हुआ? वो हंसते हुए बोला, मेरा असल नाम अकबर पाशा है। चूंकि मैंने इस जजीरे में काफ़ी ताकत हासिल कर ली है, इसलिए लोग मुझे माइटी पाशा कहते हैं। सिर्फ हमारा खुदा ऑलमाइटी है, मैं तो सिर्फ माइटी हूँ। मैं इस दौरान किसी बेडरूम में आराम से लेटकर ख्याल ख्वानी नहीं कर रहा था। मेरी औलाद मुसीबत में हो और मैं आराम करूं, भला ये कैसे हो सकता है? मैंने फ्रांसीसी अफसरान के ताउन से एक हेलीकॉप्टर हासिल किया था। उसमें सफ़र करता हुआ माइटी पाशा से राबता कायम किए हुए था। मेरी मंजिल वही प्रिंस आइलैंड थी। उसने पूछा, फरहाद साहब, ख्याल ख्वानी करने वाले कितनी दूर बैठकर किसी के दिमाग में पहुंच जाते हैं? दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं। इस वक्त मैं एक हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहा हूं और 2 घंटे के अंदर जजीरे में तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूं। उसने खुश होकर कहा, क्या वाकई आप आ रहे हैं? ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपको करीब से देख सकूंगा। मैं उससे बातें कर रहा था और सोच रहा था, सुपर मास्टर नाकाम होने के बाद अब क्या कर रहा होगा। ये बात मोटी सी अकल से भी सोची जा सकती है कि उसने इस नाकामी की रिपोर्ट अपने बड़ों को दी होगी। अभी तस्दीक नहीं हुई थी कि इसराइली इस मामले में किस हद तक मुलविस हैं। अगर हैं तो सुपर मास्टर ने इसराइली हुक्काम पर यह कहकर गुस्सा उतारा होगा कि उनका यहूदी एजेंट नाकारा निकला। उसकी हमाकतों के बायस पारस और जोजो हाथ से निकल गए। नाकाम होने वाले खामोश नहीं बैठेंगे। अब बड़े पैमाने पर सुपर मास्टर के खास आलायकार और इसराइली एजेंट जजीरे में पहुंचेंगे, बल्कि पहुंच रहे होंगे। उनसे निमटने के लिए जजीरे के तमाम जुराइम पेशा अफराद को अपनी मुट्ठी में रखना ज़रूरी हो गया था। मैंने मातहत की ज़ुबान से पूछा, माइटी पाशा, इस जजीरे में कितने ऐसे वफादार मिल सकते हैं जो योगा के माहिर हों या जिस्मानी और दिमागी तौर पर इतने सेहतमंद हों कि दिमाग में पराई सोच की लहरें आने से बेचैनी महसूस करके तुम्हारी तरह बेख्तियार सांस रोक लेते हों? उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता योगा के माहिर कौन लोग होते हैं, लेकिन मेरे जैसे सेहतमंद 20-25 वफादार ज़रूर मिल जाएंगे। यहाँ छोटे बड़े कितने गुंडे बदमाश होंगे। उसने मुस्कुराकर कहा, आपने दुनिया देखी है, ये तो जानते ही हैं कि ऐसे छोटे छोटे जजीरे दौलतमंदों की अय्याशी के लिए होते हैं। यहाँ ऐसे लोगों की आबादी है जो बड़े लोगों की अय्याशी का सामान फराहम करते हैं। यूं समझिए, ढूंढने से शायद 2-4 शरीफ आदमी मिल जाएं, वरना अमीर से लेकर गरीब तक सब ही शैतान हैं। तुम ऐसे तमाम शैतानों को खरीदो जो बिकने पर आमादा हों। जनाब, इसके लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत होगी। तुम्हें 2-4 घंटों तक लाखों डॉलर मिल जाएंगे। लाखों डॉलर? उसका मुंह हैरत से खुला रह गया। वो बड़ी मुश्किल से सांस लेते हुए बोला, जनाब, कैसे मिलेंगे? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल काम की बात करो। सुपर मास्टर नाकाम होने के बाद यहाँ खतरनाक लोगों को भेज रहा होगा। तुम्हारे पास भी वफादारों की फौज होनी चाहिए। फरहाद साहब, बदमाश आखिर बदमाश होते हैं, रकम के लालच में धोखा दे देते हैं। हमसे भी मुआवजा लेंगे, दुश्मन से भी अपना उल्लू सीधा करेंगे। मेरी नज़रों में सिर्फ 25 ऐसे सेहतमंद जवान हैं जो उसूलों के पक्के हैं, हमारे वफादार रहेंगे। इससे पहले कि सुपर मास्टर उन्हें खरीदे, तुम हर कीमत पर उन्हें हासिल कर लो। अभी कहीं से फ़ोन पर मामला तय करो। उनसे कहो रकम की अदायगी 6 घंटे बाद होगी। क्या 20-25 वफादारों से काम चल जाएगा? बाकी बदमाशों से भी राबता कायम करते रहो। मैं उनके दिमागों में पहुंचकर मालूमात हासिल करूंगा। जो वफादार रहेंगे उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, जो फरेबी होंगे उन्हें सज़ा मिलेगी। जनाब, मैं ये सोच सोच कर हैरान हो रहा हूँ कि मुझे 2-4 घंटों में लाखों डॉलर मिलने वाले हैं। ये तो वफादारों का मुआवजा और हथियार खरीदने की रकम होगी। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें क्या इनाम दूंगा। उसने जल्दी से पूछा, क्या इनाम देंगे? मेरा बेटा और बहू खैरियत से पेरिस पहुंच जाएंगे तो इस जजीरे में सबसे बड़े सरमायादार का नाम उभरेगा और वो नाम होगा माइटी पाशा। वो खुशी से कांप रहा था। उसके हाथों में स्टीयरिंग बहक रहा था। मैंने कहा, खुद को संभालो, क्या दौलतमंद बनने से पहले मर जाने का इरादा है? उसने कहा, जनाब, मेरी समझ में नहीं आता मैं किस तरह आप पर कुर्बान हो जाऊं। फिलहाल सिर्फ मेरे बेटे और बहू की हिफाजत करो। मैं वादा करता हूं, कसम खाता हूं, आखिरी सांस तक उनकी हिफाजत करूंगा। इस जजीरे में कितने नामवर दौलतमंद हैं। यहाँ 3 अरबपति सरमायादार हैं। उनमें एक जवान बेवा है जो निहायत मगरूर और संगदिल है, मर्दों से सख्त नफरत करती है। ऐसी नक चढ़ी है कि नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। उसकी नाक पर टेलीपैथी की मक्खी बैठेगी। उससे फ़ोन पर राबिता कायम करो। आपका हुक्म सर आंखों पर।
लेकिन ये बताना मेरा फ़र्ज़ है कि वो बहुत ख़तरनाक है। अगर उसे मालूम होगा मैंने उसका फ़ोन नंबर डायल किया था तो वो अपने वसी ज़राए इख्तियार करके मुझे जजीरे से निकलवा देगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे डरता हूँ, पहले डरता था, अब तो मुझे आपकी सरपरस्ती हासिल है। पाशा, तुम बातों में अपना काम भूल जाते हो। मैंने कहा था इन 25 सेहतमंद नौजवानों से फ़ौरन राबिता कायम करो, उन्हें पहली फुर्सत में अपनी वफादारी पर आमादा करो। उसने एक बार के सामने कार रोक कर कहा, मैं अभी उनसे राबिता कायम करता हूँ। वो अपने मातहत के साथ बार में आया, 2 पैग का ऑर्डर दिया, फिर बारमैन की इजाज़त से टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। माइटी पाशा जिस बार या तफरीह गाह में जाता था वहाँ हेलीकॉप्टर के पायलट का हुलिया बताकर उसके मुतल्लिक पूछता था। वहाँ भी उसने बारमैन से पूछा, क्या तुमने किसी ऐसे शख्स को देखा है जिसकी आंखें नीली और भवें घनी हैं, सर पर एक भी बाल नहीं है, उसने खाकी रंग की पतलून और जैकेट पहनी हुई है? बारमैन ने जवाब दिया, ऐसा एक आदमी तकरीबन पौन घंटा पहले उधर एक मेज पर बैठकर पी रहा था। अचानक वो उछलकर खड़ा हो गया, लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश करने लगा। इस कोशिश में वो कभी मेज पर ऊंधा हो रहा था, कभी कुर्सियों का सहारा लेकर संभलना चाहता था। बार के मुलाजमों ने उसे पकड़कर पूछा उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जवाब देने से पहले ही वो दम तोड़ चुका था। मैंने मातहत की जुबान से कहा, पाशा, सुपरमास्टर यहाँ भी वही काम दिखा गया है। बहरहाल तुम अपने काम की रिपोर्ट दो। 2 सेहतमंद जवानों से राबिता कायम हो चुका है, वो मेरा काम करने पर राजी हैं। मैंने उनसे कहा है वो अपने दूसरे साथियों को भी अपनी रिहाइश गाह पर बुलाएं। मैं आधे घंटे में उनके पास आ रहा हूँ। ठीक है, उनसे रूबरू बैठकर मामला तय करो। और हाँ, इस मगरूर अरबपति बेवा को भूल रहे हो, उसका क्या नाम है? उसे मैडम सुल्ताना आफंदी कहते हैं। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल करते हुए पूछा, मुझे फ़ोन पर क्या कहना होगा? तुम खामोश रहोगे, मैं तुम्हारे दिमाग में आ रहा हूँ। मैं उसके पास पहुँच गया। वो नंबर डायल करने के बाद इंतज़ार कर रहा था। दूसरी तरफ घंटी बज रही थी। फिर किसी ने कहा, हेलो। मैंने माइटी पाशा की ज़ुबान से पूछा, क्या मैं मैडम के पर्सनल सेक्रेटरी से मुखातिब हूँ? जी हाँ, फरमाइए। सेक्रेटरी साहब, तुम्हारी आवाज़ बैठी हुई है, ज़रा खंकार कर गला साफ करो, फिर बोलो। ये कहकर मैंने पाशा से रिसीवर रखवा लिया और सेक्रेटरी के दिमाग में पहुँच गया। उस बेचारे ने खंकार कर गला साफ किया, फिर कहा, मिस्टर, मेरी आवाज़ ठीक है, शायद आपके रिसीवर में कुछ खराबी है। हेलो हेलो। उसने रिसीवर कान से हटा कर देखा, फिर कान से लगाकर हेलो हेलो कहा। पता चला लाइन कट गई है। उसने रिसीवर रख दिया। उसकी सोच ने बताया मैडम सुल्ताना आफंदी महल में है, शाम को घुड़सवारी के लिबास में बाहर आएगी। मैं उस सेक्रेटरी को सुल्ताना तक पहुंचाना चाहता था। इस ख्याल से ही उसके दिमाग ने सहम कर कहा, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? महल में मैडम का जो मखसूस रिहायशी हिस्सा है वहाँ आज तक किसी मर्द ने कदम नहीं रखा। बेशक मुझे तजस्सुस है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन ज़िंदगी से बेजार होने के बाद ही जा सकता हूँ। उस महल के मुतालिक सेक्रेटरी की मालूमात महदूद थीं। वो इतना जानता था कि एक आहनी सलाखों की दीवार है जो महल को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। सलाखों के उस पार जहाँ सुल्ताना रहती है वहाँ 2 चीते आज़ादी से घूमते रहते हैं। उनमें से एक नर है, दूसरी मादा है। उनके बच्चे भी हैं। वो बच्चे रात को सुल्ताना के साथ बिस्तर पर सोते हैं। वो रोज़ाना 1 गाय या 4 बकरे उन चीतों के आगे डालती थी। महल के पीछे मुख्तलिफ नस्ल के खूंखार कुत्ते थे जो सिर्फ सुल्ताना को पहचानते थे और उसके एक इशारे पर किसी भी दुश्मन की बोटियां नोचकर सिर्फ हड्डियों का ढांचा छोड़ देते थे। महल के एक हिस्से में एक ऐसी चारदीवारी थी जो आहनी जालियों से बनाई गई थी। उसमें दर्जनों जहरीले सांप थे जिन्हें वो अपने हाथों से दूध पिलाती थी। जो सांप उसे पसंद आता था उसके साथ खेलने के लिए खुद उसके मुंह से जहर निकालती थी, फिर दिल बहलाने के लिए उसे बेडरूम में ले जाती थी। इन आदात से जाहिर होता था कि वो कैसी दरिंदा सिफ्त औरत है। महल के मुलाजिम हों या महल की ज़रूरियात का सामान सप्लाई करने वाले लोग हों या पुलिस अफसरान हों, सब उसके सामने सर झुकाकर बात करते थे। उसे नज़रें मिलाते वक्त यूं लगता था जैसे उसकी आंखों से सांप फुंकार रहे हों। वो कभी मुस्कुराती नहीं थी, लेकिन किसी को ठोकरें मारते वक्त कहकहे लगाती थी। यूं तो बड़े लोग छोटे लोगों को ठोकरें मारते ही हैं, लेकिन उस औरत के मिजाज में दरिंदगी और बेरहमी कूट कूट कर भरी हुई थी। वो ज़रूरतमंदों को $100 से लेकर $1000 तक देती थी, मगर शर्त यह होती थी कि रकम लेने वाले लहू लहान होने तक उससे मार खाते रहें। वो गरीबों और हाजतमंदों की हमदर्द थी,
और बेदर्द भी थी। एक मशगले के तौर पर उनसे पोलो के मैदान में खेलती थी। उसके हाथ में एक पोलो स्टिक होती थी। वो घोड़े पर सवार रहती थी और किसी भी ज़रूरतमंद से कहती थी, देखो ये मैदान बहुत वसी और अरीज़ है, तुम खुद को बचाने के लिए भागते रहो, मैं तुम्हारे पीछे घोड़े को दौड़ाऊंगी और इस छड़ी से मारती जाऊंगी। अगर तुमने आधे घंटे तक खुद को बचा लिया तो मैं तुम्हें $500 दूंगी, और खुद को ना बचा सके तो मेरे हाथों लहू लहान भी होगे और रकम भी सिर्फ $100 हासिल करोगे। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।